السلام علیکم محترم عزیز دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیریز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایپیسوڈ 31۔ جیسا کہ اب تک ہم جان چکے ہیں، کفار مکہ اور مسلمانوں میں بڑے زور شور سے جنگ ہو رہی تھی۔ مرد چلا رہے تھے، عورتیں چیخ رہی تھیں، بھاگتے بھاگتے وہ اپنے خیموں سے بھی آگے نکل گئے۔ مسلمانوں نے دور تک لاشیں بچھا دیں۔ کفار کا سپہ سالار ابو سفیان بھی بھاگا، خیمے خالی ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان پر چھاپا مار دیا اور انہیں لوٹنا شروع کیا۔ مشرک بدحواسی میں بھاگ کر ایک دوسرے سے آگے نکل گئے، اتنی دور کہ مسلمانوں کی پکڑ سے باہر ہو گئے۔ عورتیں گرتی پڑتی بھی وہیں پہنچ گئیں۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ مسلمانوں میں اختلاف کا انجام۔ جب وہ خیموں کو بھی چھوڑ کر بھاگے تو تمام مسلمان ادھر ادھر سے سمٹ کر ان کے خیموں میں جا پڑے۔ ان کی ہر چیز لوٹی اور پامال کی جانے لگی۔ مسلمانوں کا وہ محافظ دستہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے احد کی گھاٹی میں حضرت عبداللہ کی سرکردگی میں مقرر کیا گیا تھا، مشرکوں کو ہار کر بھاگتے ہوئے دیکھ کر وہ بھی ان کا پیچھا کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ نے روک کر کہا، مسلمانوں کیا کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دوسرا حکم ملنے تک اس جگہ پر ٹھہرے رہو، یہاں سے حرکت نہ کرو۔ تم اس جگہ کو چھوڑتے ہو تو یہ نافرمانی میں داخل ہے۔ کچھ لوگوں نے جواب دیا، مشرکوں کو ہار ہو گئی ہے، ان کا جھنڈا میدان میں بہت دیر سے پڑا ہے، مسلمان ان کا پیچھا کر رہے ہیں، ممکن ہے مشرک پلٹ پڑے اور ہماری مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مگر ہم کو تاکید کی گئی ہے کہ ہم اس جگہ سے حرکت نہ کریں۔ ایک مجاہد نے کہا، یہ حکم اور تاکید لڑائی کے وقت تک کے لیے تھی، پر اب مسلمانوں کی جیت ہو چکی ہے، اس لیے اب ہمارا اس جگہ ٹھہرنا بیکار ہے۔ یہ کہتے ہی تمام مجاہد چلے اور پیچھا کرنے والے مسلمانوں سے جا ملے۔ صرف 5 آدمی اس جگہ رہ گئے۔ سورج پوری تیزی سے چمک رہا تھا، دھوپ ہر چیز کو گرما رہی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ گھاٹی کے کنارے پر کھڑے لڑائی کے میدان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یکایک انہوں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ آواز گھاٹی سے آ رہی تھی۔ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کو سن رہے ہو؟ ہاں سن رہے ہیں، بہت تیزی سے گھوڑے آ رہے ہیں، ایک مجاہد نے کہا۔ یہ کون ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ نے پوچھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا، شاید کفار مکہ ہوں، ایک مجاہد نے کہا۔ یہ سبھی نہایت غور اور توجہ سے گھاٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھاٹی کے دوسری طرف سے سواروں کا دستہ نظر آیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو پہچان لیا تھا، یہ کفار قریش کا دستہ تھا، خالد بن ولید کی سرکردگی میں آ رہا تھا۔ خالد اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ بات یہ ہوئی کہ جب مسلمان مشرکوں کا پیچھا کرنے دوڑ پڑے اور گھاٹی کے محافظ بھی چلے گئے تو خالد نے دور سے گھاٹی کو دیکھ لیا۔ وہ اس کی اہمیت کو خوب جانتے تھے۔ انہوں نے اپنے سواروں کا دستہ لیا اور 1 میل کا چکر کاٹ کر پہاڑی کے پیچھے پہنچے اور وہاں اسلامی مجاہدوں کی نظروں سے بچتے ہوئے گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے آتے ہی عبداللہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ عبداللہ نے فوراً میان سے تلوار کھینچ لی، ان کے ساتھیوں نے بھی تلواریں کھینچ کر بلند کی اور دشمنوں پر پل پڑے۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان صرف 5 تھے اور دشمن 100 تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان پسپا ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے باقی ساتھی سبھی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چونکہ میدان صاف ہو گیا تھا، کوئی روکنے والا باقی نہ رہا تھا، اس لیے مشرک تیز رفتاری کے ساتھ پہاڑی کے نیچے اترنے لگے۔ کچھ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے تھے، انہوں نے خالد اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب ان سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس نعرے کی آواز کو سن کر کے مسلمان جو مشرکوں کا پیچھا کر رہے تھے پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگے۔ احد کی پہاڑی سے کفار کی فوج اترتی نظر
नजर आई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी के दामन में कुछ मुसलमानों के साथ खड़े थे, इसलिए मुसलमानों को डर हुआ कि कहीं कुफार आप पर हमला न कर दें। वे फौरन पलटे और बड़ी तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और हिफाजत के लिए आगे बढ़े। इक्रिमा ने मुसलमानों को वापस आते हुए देख लिया था। उसने ललकार कर अपने साथियों को रोका। जब वे उसके आगे जमा हो गए तो उसने मुसलमानों पर धावा बोल दिया। बड़ी तेजी से मुसलमानों के पीछे दौड़ा। अबू सुफियान जो अब तक भागा जा रहा था रुका। उसने कुफार को जमा होने का हुक्म दिया। तमाम मक्का वाले उसके चारों तरफ जमा हो गए। वह तमाम कुफार को साथ लेकर नए जोश और नई हिम्मत के साथ हमलावर हुआ। मुसलमानों पर ये तमाम हमले एक एक करके उम्मीद के खिलाफ और अचानक हुए। नतीजा यह हुआ कि लड़ाई का रंग बदल गया। मुसलमान हर तरफ से कुफार के घेरे में आ गए। फिर भी मुसलमानों ने हिम्मत न हारी और वे जगह जगह घिरे होने के बावजूद अपनी बहादुरी का सबूत दे रहे थे। बड़ी खूरेज लड़ाई शुरू हो गई थी। मुसलमान अपने से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना चाहते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान निसारों को जान देने और जान लड़ा देने का यह मंजर देख रहे थे। लड़ाई की चक्की निहायत तेजी से घूम रही थी। तलवारें जल्द जल्द चल रही थी। खालिद और उनके साथी बढ़ बढ़कर हमले कर रहे थे। वे मुसलमानों को कुचल डालने के लिए घोड़े बढ़ाते थे, पर जब मुसलमान बढ़कर संभलकर जोश और तेज में हमले करते तो वे पीछे हट जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की अफवाह। हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में तलवार लिए और दूसरे हाथ में झंडा लिए बड़े जोश से लड़ रहे थे। वह अब तक बहुत बड़ी तादाद में काफिरों को जहन्नुम रसीद कर चुके थे। एक बार वह बड़े जोश में आगे बढ़े। वह खालिद को जानते थे, कत्ल करने के लिए आगे बढ़ गए। कई काफिरों को मारते मारते खालिद के करीब पहुंच गए। उन्होंने तलवार उठाई, पूरी ताकत और जोश से हमला किया। खालिद पीछे हटे। हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने फिर हमला करना चाहा। इस मुद्दत में पीछे से कुफार के एक मशहूर सहसवार जालिम ने इब्ने कुमैया ने आकर हमला कर दिया। चूंकि हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के थे, इसलिए इब्ने कुमैया ने समझा कि रसूल खुदा ही को कत्ल कर डाला। चुनांचे उसने बुलंद आवाज से कहा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। इस आवाज को सुनकर मुशरिकों ने मारे खुशी के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुसलमान इन नारों को सुनकर हैरान रह गए। वे गम में डूब गए, लड़ना भिड़ना भूल गए। गम में डूबी हुई निगाहों से खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगे। कुफार ने मुसलमानों की इस घबराहट का फायदा उठाते हुए जोरदार हमला कर दिया। मुसलमान संभले, होश में आए। अक्सर मुसलमान यह कहकर मैदान में नए जोश के साथ कूद पड़े कि जब महबूब रसूल ही जिंदा ना रहे तो अब जिंदगी का मजा ही क्या। मुसलमानों लड़ो और लड़कर शहीद हो जाओ। मुसलमानों ने जोश में आकर पूरी ताकत से हमला किया। हर तरफ से तलवारें बुलंद हुई। जोश व गजब का तूफान उमड़ पड़ा। सर कटकर गिरने लगे और खून की नदियां बहने लगी। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जोश में गजब में भरे हुए कुफार को कत्ल करते हुए उस तरफ आगे बढ़ रहे थे जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए किराम के दरमियान खड़े हुए देख लिया। वह मारे खुशी के उछल पड़े। उन्होंने ऊंची आवाज से कहा, मुसलमानों, खुदा का शुक्र है कि रसूल खुदा जिंदा है। इसी बीच हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ऊंची आवाज में फरमाया, खुदा के बंदो मेरी तरफ आओ, मैं खुदा का रसूल हूँ। मुसलमानों ने इस आवाज को सुना। उनका गम दूर हुआ। खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चेहरे खिल गए। वे हर तरफ से सिमट सिमट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगे। आमतौर पर कुफार समझ रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज ने बता दिया था कि आप जिंदा हैं। वे भी हर तरफ से सिमट सिमट कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगे। अब वह जगह जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे लड़ाई का मरकज बन गई। बड़ी खूबरेज लड़ाई होने लगी। इंसान खीरे ककड़ी की तरह कट कट कर गिरने लगे। खालिद और उसके साथी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर टूट पड़े। मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में लिए हुए थे। कुफार
कुफार उस घेरे को तोड़ना चाहते थे, इसलिए जोरदार हमले कर रहे थे। मुसलमान भी उसी जोश में खरोश से हमले को तोड़ रहे थे और जवाबी हमले भी कर रहे थे। इक्रिमा बिन अबू जहल ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुन ली थी। वह मैं साथियों के निहायत जोश में खरोश से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर हमलावर हुआ। हजरत जियाद और हजरत अम्मारा, इन दो मुजाहिदों ने बड़े इस्तक़लाल से उनका हमला रोककर खुद भी हमला किया। जोरदार लड़ाई हुई, यहाँ ये दोनों मुजाहिद शहीद हो गए। कुफार का निशाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इसलिए आप पर धावा भी ज्यादा था। वे चाहते थे कि किसी तरह रास्ता साफ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लिया जाए, लेकिन मुसलमान थे कि आपके चारों तरफ लोहे की दीवार बन गए थे। खालिद ने अपने साथियों से 25-20 जवानों को अलग करके उनको तीर चलाने का हुक्म दिया। उन लोगों ने एक बुलंद जगह पर पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात पर तीर चलाना शुरू कर दिया। इस तीर अंदाजी में मुसलमानों को सख्त नुकसान पहुंचने लगा। हर आदमी तीर खा कर घायल हो गया। चूंकि डर पैदा हो गया था कि कहीं कोई तीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न लग जाए, इसलिए हजरत अबू दुजाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, गोया आपने अपनी पीठ को ढाल बना लिया। वह मर्दाना वार खड़े थे, तीर उनकी पीठ पर आकर लग रहा था। अगरचे तीरों के लगने से उन्हें तकलीफ हो रही थी, पर उनके चश्मे आबरू पर बल तक न आता था। अब्दुल्ला बिन हिसाब जोहरी खालिद का एक साथी था। मुसलमानों से बचता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दूसरी तरफ मुतवज्जे थे। अब्दुल्ला बिन हिसाब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचकर वार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा घायल हो गया। चूंकि अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी तरफ मुंह करके खड़े थे और अब्दुल्ला अबू दुजाना के पीछे से आया, इसलिए उन्होंने उसे नहीं देखा। जब अब्दुल्ला ने हमला करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी कर दिया तो अबू दुजाना ने जोश में आकर उस पर हमला किया। उनकी तलवार अब्दुल्ला का खूद काट कर कई इंच सर में उतर गई। वह जख्मी होकर पीछे हटा। अबू दुजाना उसके पीछे दौड़े। वह दौड़कर मुशरिकों के गोल घेरे में जा घुसा। कि अबू दुजाना जोश में गजब में भरे हुए थे, इसलिए वह मुशरिकों को कत्ल करते हुए अब्दुल्ला के पीछे ही पीछे चल पड़े। अब्दुल्ला बिन हिसाब उनसे ऐसा डर गया था कि वह अपनी जान बचाने के लिए कुफार के एक घेरे से दूसरे घेरे में और दूसरे घेरे से तीसरे घेरे में छिपता फिरता था। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके पीछे पीछे फिर रहे थे। वह उसे कत्ल करना चाहते थे। आखिरकार वह भागकर अबू सुफियान के लश्कर में जा घुसा और सबसे पीछे जा खड़ा हुआ। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह गए थे। तमाम मुसलमान अलग हो गए थे या अलग कर दिए गए थे और वे जगह जगह पूरी बहादुरी से लड़ रहे थे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ उम्मे अमारा रह गई थी या करीब ही हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह लड़ रहे थे। उम्मे अमारा की बहादुरी, इब्ने कुमैया जिसने हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तलवार लेकर लपका। हजरत उम्मे अमारा ने उन्हें झपटते हुए देख लिया। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, ओ काफिर, खबरदार, आगे कदम ना बढ़ाना। यह कहते ही उन्होंने जाबाजी से इब्ने कुमैया पर हमला किया। वह दोहरी ज़िरे पहने हुए था। उसकी ज़िरे पर तलवार पड़कर उचट गई। हजरत उम्मे अमारा ने कई बार लगातार हमले किए, पर कोई बार भी कामयाब ना हुआ। इब्ने उमैया ने जोश में आकर उम्मे अमारा पर तलवार का एक हाथ मारा। चूंकि वह ज़िरे पहने हुए ना थी, ना उनके पास ढाल थी, इसलिए वह इस हमले को ना रोक सकी। उनका हाथ कंधे के करीब से घायल हो गया। इतने में कुमैया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया। अगरचे वह कुफार के गोल घेरे में थे, हर तरफ से उन पर हमले किए जा रहे थे। वह बड़ी फुर्ती से हमलों को रोक रहे थे, मगर इब्ने कुमैया को बढ़ते हुए देखकर तड़प गए। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए आपकी तरफ बढ़े। उन्होंने ऊंची आवाज से मुसलमानों से खिताब करते हुए फरमाया, कहा कि मुसलमानों, खुदा के रसूल दुश्मनों के घेरे में आ गए हैं। इस आवाज को सुनकर मुसलमान चौंके, संभले और अपने अपने सामने वालों को कत्ल करते
हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। इस बीच इब्ने कुमैया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गया। उसने तलवार उठाकर पूरी ताकत से हमला किया। तलवार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूद पर पड़ी। खूद के दो हल्के आंखों के नीचे की हड्डी में घुस गए। इब्ने कुमैया ने दूसरा वार करना चाहा, लेकिन उस वक्त अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब आ पहुंच गए थे। उन्होंने ललकार कर कहा, ओ काफिर समल। इब्ने कुमैया घबरा गया, वह पीछे हटा। अबू उबैदा ने जोश में आकर उस पर हमला कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि उसकी दोहरी जीरा चीर उठी और कंधे के करीब घाव करके हंसली की हड्डी तोड़ गई। इब्ने कुमैया ने खौफनाक चीख मारी और सख्त खौफजदा होकर भागा। अबू उबैदा ने उनका पीछा करना चाहा, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक लिया। अबू उबैदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी देखकर तड़प गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सब्र व इस्तक़लाल के साथ खड़े थे और जख्मी होने पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मलाल या दुख नहीं जाहिर हो रहा था। हजरत अबू उबैदा ने खुद को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे हड्डी में घुसा हुआ था दांतों से पकड़कर खींचा। बहुत जोर लगाया पर खुद ना निकला। खुद निकालने में जोर लगाते लगाते अबू उबैदा के दो दांत टूट गए। बड़ी जद्दोजहद के बाद खुद निकाला गया। खुद के निकलते ही खून का फव्वारा बहने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे से खून पोंछते जाते थे और फरमाते जाते थे, वह कौम कैसे फला पा सकती है जिसने अपनी नबी के चेहरे को इसलिए खून से रंगा कि वह उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाता है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह फरमा ही रहे थे कि एक शरीर बदमाश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पत्थर खींचकर मारा। नाउज़ुबिल्लाह, उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होंठ जख्मी होकर नीचे का एक दांत शहीद हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक गड़ा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गड़े में गिर गए। इसी बीच हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा और कुछ दूसरे सहाबी इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुकाबले के दुश्मनों को खत्म करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। फौरन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहर निकाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा खून से तर हो रहा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी इबा के दामन से खून पोंछना शुरू किया। हजरत तलहा बोले, ए अल्लाह के रसूल, इस कौम के हक में बद्दुआ फरमाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं तलहा, मैं खुदा का रसूल हूँ। एक रसूल की शान यह नहीं हो सकती कि वह कौम के जुल्मों से तंग आकर बद्दुआ करके तमाम कौम को अल्लाह के गजब में डाल दे। लड़ाई अब भी जोर व शोर से हो रही थी। सर धड़ से कट कट कर गिर रहे थे। खून पानी की तरह बह रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, हो सके तो उहुद की पहाड़ी पर चढ़ चलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले चलें, हम जानिसार खादिम आपके साथ हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद की तरफ बढ़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंची आवाज से कहा, मुसलमानों, उहुद की पहाड़ी पर चढ़ चलो। इस आवाज को सुनकर तमाम मुसलमान उहुद की तरफ बढ़ने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहब इकराम भी उस तरफ बढ़े। पहाड़ी करीब ही थी। थोड़ी ही जद्दोजहद में ये सब पहाड़ी पर चढ़ चले। मुसलमान भी अब इधर उधर से सिमट सिमट कर उहुद की पहाड़ी पर आने लगे। इस तरह लड़ाई का एक मोर्चा कायम हो गया। अबू सुफियान ने देखा कि मुसलमान बेहतरीन जगह पर चढ़कर जील तोड़ लड़ाई लड़ रहे हैं। वह पहाड़ी पर चढ़ने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, देखो कुफ्फार को पहाड़ी पर चढ़ने से रोक दो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ सहाबियों को अपने साथ लिए हुए आगे बढ़े। बड़े जोश से कुफ्फार पर हमलावर हुए। अगरचे अबू सुफियान और उसके साथियों ने ऊपर चढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, पर शरफरोश मुजाहिदों ने उन्हें एक कदम भी न बढ़ने दिया, बल्कि ऐसे कड़े हमले किए कि कुफ्फार को नीचे धकेल दिया। इस पर भी एक काफिर इब्ने अबी खलफ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर
पत्थर डालने का पक्का इरादा करके आया था, मर्दाना वार आगे बढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हारिस के हाथ से नेज़ा लेकर उस पर वार किया। नेज़े की अनी गर्दन के नीचे हड्डी में लगी। वह बदहवास होकर भागा। अगरचे जख्म मामूली सा था, फिर भी वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और जान से हाथ धो बैठा। अब तमाम मुसलमान इधर उधर से जमा होकर कुफार को मारते काटते पहाड़ी पर चढ़ गए। चूंकि कुफार पहाड़ी से नीचे और मुसलमान पहाड़ी के ऊपर थे, इसलिए अब लड़ाई बंद हो गई। फौज को वापसी का हुक्म। अबू सुफियान ने ऊंची आवाज से मालूम किया, तुम लोगों में मोहम्मद है? किसी ने उसका जवाब न दिया। उसने फिर पूछा, क्या तुम में अबू बकर है? अब भी सब खामोश रहे। उसने फिर पूछा, क्या तुम में उमर है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चिल्लाकर कहा, ए खुदा के दुश्मन, ये सभी जिंदा हैं। वह वक्त करीब है जब तू रुसवा होगा। अबू सुफियान ने घमंड के नशे में कहा, हवल की जय, हवल की जय। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, इसे जवाब दो, अल्लाह बरतर है। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यही जवाब दिया। अबू सुफियान ने कहा, उज़्ज़ा हमारा बुत है, तुम्हारा नहीं। हजरत उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक जवाब दिया, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा मौला नहीं। अबू सुफियान ने कहा, अब हमारा तुम्हारा मुकाबला अगले साल बद्र नामी जगह पर होगा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जवाब दिया, हमें तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। इसके बाद अबू सुफियान ने फौज को वापसी का हुक्म दे दिया। कुफार वापसी का हुक्म सुनकर बहुत खुश हुए। वे फौरन लौटे और मक्का की तरफ रवाना हुए। मुसलमान उहुद की पहाड़ी पर खड़े कुफार की वापसी का मंजर देखने लगे। थोड़ी ही देर में तमाम कुफार अपने मकतूलों को लड़ाई के मैदान में छोड़कर नजरों से ओझल हो गए। तो दोस्तों, आपको ये जंग उहद का वाकया कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उम्मीद है आपको वाकया अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। इंशाअल्लाह इससे आगे का वाकया कल सुनाया जाएगा।